Dear students, I welcome you all in SP Smart Hybrid Schooling System. So today we are entering into another important day of your CUET preparation. So today we will be doing a new topic, and we will be clarifying our concept regarding the rules that we have to be used to get spot errors, right? What are the methods, what are the tricks, what are the points which we need to cater and keep in mind while performing these questions when it comes for your CUET examination. Beta, most of the question, maximum, your question would be there for 50 question would be asked to you in the particular exam, and 5 to 7 question will be based on your spotting error. So beta, what rules we have to keep in mind to spot errors, we are going through it. So let's go through the given topic. The very first thing that you need to keep in your mind is that error spotting is a way of identify grammar error in English. See, we have been focusing on much on your grammatical part. We have also discussed all part of speech. They are total in 8 in number. If we talk about part of speech, we have done important vocabulary, we have completed idioms, we have completed tenses. So beta, your error spotting can come from any of the topic that is related to the grammar, right, and come under the verbal ability section of English language. It is widely used to judge one's hold on English language and grammar. So you have to be quite thorough with your English language and grammar. I recommend you all to go with the part of speech again that we have completed recently. Generally, candidates, we need to find out one error. अब बेटा क्या होगा, one question would be asked. We need to identify that particular error. It can be error in terms of punctuation, but sometimes it may be multiply. That means if a error is there that has some mistake with the punctuation, maybe another error would be there which you need to find, and it might be based on the conjunction part, right? Some question may contain error of different type. It has been specified clearly over here what I was saying to you all. For instance, what is the boys playing? ठीक है, अब is क्या है बेटा? is एक subject है जो कि singular चीज़ों के साथ लगता है, ठीक है. अब बॉयज़ क्या है? बॉयज़ प्लूरल है, तो इस बॉयज़ के साथ नहीं आ सकता. तो यहाँ पे एरर क्या है बच्चे? यहाँ पे एरर है इज. इसकी जगह क्या है? व्हाट आर दी बॉयज़ प्लेइंग विद द क्वेश्चन मार्क. अगेन क्वेश्चन मार्क इज द एरर ओवर हियर. सो देयर आर 2 एरर्स इन दी सेंटेंस. तो ये 2 एरर थे जो हमने फाइंड आउट किए, राइट. द वर्ब, एक तो वर्ब, दिस इज द हेल्पिंग वर्ब, राइट, और सेकेंड वन इज द पंक्चुएशन. क्वेश्चन मार्क नहीं था. The correct way of writing is what are the boys playing, right? And I have told you कि क्या यहाँ पे गलती थी और हमने उसको rectify भी किया. But if we talk about error spotting, sentences, words and phrases are the roots of any language. See, जब भी कोई language create होती है, it created on the basis of your sentences, words and phrases. ठीक है, ये उनके roots होते हैं. Error in sentences leave a poor impression on the readers. Okay. अब क्या बेटा, you for example you're reading a paragraph or you're reading a poem. You're reading a poem and you're certainly feeling like there is something wrong with the content. The lines are not appropriate. So English में एक सिक्स सेंस भी यूज में आती है, कॉमन सेंस कहते हैं जिसे, है ना. इफ यू फाइंडिंग समथिंग इट इज नॉट कमिंग अप्रोप्रिएटली, काइंडली अंडरलाइन दैट पर्टिकुलर कंटेंट, स्टार्ट स्कैनिंग एंड डेफिनेटली यू विल बी कमिंग टू नो अबाउट द आंसर. इसको हम आगे वी विल बी प्रैक्टिसिंग few of the question and I will be discussing some important question with you regarding the same so that it gets clear to you all. But it becomes difficult to understand the exact meaning of these sentences, and they also changes the meaning of sentence. Ab English has a problem. Even if you're using a word, the meaning of the word will be changed as per the sentence used. ठीक है. For example, I give an example. अब मैं बोलूँ कि I am in the school और दूसरा सेंटेंस में बोलूँ I am at the school, right? तो बेटा there are 2 sentences. Let me write it for you. I am
in the school and I am at the school. So grammatically which sentence is right? First one or second one? Class, this question is for you all. Kindly unmute yourself. Class, is my voice audible? Class? Yes, sir. Yes, sir. Which sentence is grammatically right? I am in the school या I am at the school? I am at the school. I am at I the am school. at the school. Okay, I am at the school. Okay. Two students from this class have answered कि sir ये जो second वाला है I am at the school ये right है. But I really want to ask you one question. What is the why you have considered the second sentence as the right one and why not? Both are right. Okay, I got another answer from one of the student के sir ये दोनों ठीक है. कौन कह रहे हैं कि ये दोनों ठीक है? Okay, very good. बट बेटा ये कैसे ठीक है? वॉट डज इट मीन्स? आई एम इन द स्कूल का क्या मतलब है एंड आई एम एट द स्कूल का क्या मतलब है? what does these sentences mean? अगर मैं कह रहा हूं कि आई एम इन द स्कूल, इसका क्या मतलब है? मैं स्कूल के अंदर हूँ. मैं स्कूल के अंदर हूं. वेरी गुड. तो ये ग्रामेटिकली सही हुआ गलत हुआ? सही हुआ. सही हुआ. ओके, ठीक है. अब हम दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं. आई एम एट द स्कूल, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? मैं स्कूल में हूँ. मैं स्कूल में हूँ, तो उसका क्या मतलब हुआ? मैं स्कूल, इसमें आई एम इन द स्कूल. बेटा आई एम एट द स्कूल मीन्स के आई एम नियर द स्कूल. मैं स्कूल के आसपास हूँ, नियर बाय, राइट. और ऊपर हुआ कि मैं स्कूल के अंदर हूँ, आई एम इनसाइड, राइट. तो ये ग्रामेटिकली राइट है. तो बेटा यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको कंटेंट को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा. इफ समथिंग रॉन्ग यू आर फीलिंग लाइक कि यार ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, या ये दिस सेंटेंस इज नॉट मेकिंग ए सेंस, काइंडली अंडरलाइन दैट पर्टिकुलर सेंटेंस एंड रीड इट वाइज टू फिगर इट आउट के व्हाट इज रॉन्ग विद इट. फॉर दैट यू नीड टू हैव ए वेरी गुड होल्ड ओवर योर पार्ट ऑफ स्पीच दैट वी हैव डन रिसेंटली. पार्ट ऑफ स्पीच सबके क्लियर है बच्चे? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू नो, दिस इज द मदर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. I have helped you with part of speech in your latest recent lecture. So clear है आपको बच्चे ये? Class, yes, no, what? Yes, sir. Clear है. Okay. Yes, sir. Keep your part of speech along with your tenses part very strong. ठीक है, तभी आप error spot कर पाओगे. ठीक है. Let's have a glance over some of the rules which we use in spotting errors. ठीक है. The very first and basic rule says check and identify the part of speech. I am focusing and emphasizing on the same to you right now. ठीक है? A part of speech classifies the way a word functions in sentence. Definitely it will help you to know the sentence which is being used in the paper. Is it giving a right sense or not? अब कितने पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं बेटा? देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच, राइट. सबसे पहले हम नाउन की बात करें. नाउन फॉलोड बाय प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस, एडजेक्टिव्स. सो दीज आर पार्ट ऑफ स्पीच. अगर मैं पार्ट ऑफ इफ आई टॉक यू अबाउट पार्ट ऑफ स्पीच, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. ठीक है. दे are playing football yesterday. Is it a right sentence grammatically? What would be the error if you really need to spot an error in this particular sentence? If you need to spot an error in this particular sentence, what would be the error? Class? Class, is my voice clear? Class, is my voice coming? Yes, Better kindly identify the error which is there present in this sentence. They are playing football yesterday.
बेटा आर कैसे होगा, हम वी आर यूजिंग येस्टरडे, येस्टरडे मतलब कि जो बीत चुका कल है ना, बीता हुआ कल, एंड आर इज यूज फॉर योर प्रेजेंट टेंस। तो बच्चे जब हम येस्टरडे की बात कर रहे हैं दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट आवर पास्ट। अब दूसरी बात है दे, दे इज ए प्लूरल सब्जेक्ट, राइट, इट्स ए प्लूरल सब्जेक्ट। अब दे के साथ क्या लगेगा, आर तो लगेगा, बट अगर प्रेजेंट की बात की होती, मगर यहाँ पे साथ में येस्टरडे भी आ गया तो ये बीते हुए कल की बात है, तो यहाँ पे वर आएगा, दे वर प्लेइंग फुटबॉल येस्टरडे। क्लियर है बच्चे? क्लास, बेटा जी, इज माई वॉइस कमिंग? क्लास, okay, so we are talking about error spotting, and let's talk about another rule. The second rule says identify the type of tense. ठीक है, उससे पहले हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं एक और, विच इज बेस्ड ऑन योर पार्ट ऑफ स्पीच। राम आर प्लेइंग, इज इट ए राइट सेंटेंस बच्चे? राम इज ए सिंगुलर आइडेंटिटी, आर प्लूरल के साथ लगता है, तो यहाँ पे एरर क्या है, आर इज द एरर विच हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय इज। सो द राइट आंसर इज राम इज प्लेइंग। क्लियर है बच्चे? यस सर। बेटा बोलो ना, व्हाई यू आर नॉट रिप्लाइंग? यस सर। Okay, so let's see the rule number 2. The rule number 2 says identify the type of sentence. हमें सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है कि सेंटेंस अफर्मेटिव है यानी पॉजिटिव है, नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है। लेट मी डिस्कस वन ऑफ द रूल विद यू ऑल। अगर मैं बोलूँ, सो आंसर इज ऑल्सो गिवन, ठीक है, अगर मैं बोलूँ when is this, what is the error in this sentence? error क्या बच्चे? सर हु की जगह हुज आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। सो आपको WH फैमिली को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। WH फैमिली में हर W का अलग अलग इंपॉर्टेंस है, हर एक W की अलग सिग्निफिकेंस है। सो हाउ आर यू गोइंग, दिस इज रॉन्ग। अब इसका क्या मतलब हुआ, हाउ आर यू गोइंग, मतलब अगर हम देखा जाए तो हम किसी चीज़ की बात चल रही है, मतलब कि कहाँ जा रहे हो, तो डेस्टिनेशन की बात चल रही है, प्लेस की बात चल रही है। तो जब भी हम प्लेस की बात करते हैं तो WH फैमिली का क्या आता है, वेयर आता है, ठीक है। अगर यहाँ पे टाइम की बात होती, ठीक है, तो WH फैमिली का कौन सा मेंबर आता? बेटा टाइम WH में क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन सा फैमिली मेंबर है W? हाँ, व्हेन, वेरी नाइस, व्हेन, ठीक है। हाउ आर यू गोइंग, दिस इज ए रॉन्ग सेंटेंस, ठीक है। अगर यहाँ पे बात होती कि रीजन क्या जाने का, ठीक है, रीजन, अगर रीजन का हमने पता करना होता तो हम कौन सा मेंबर लगाते WH फैमिली का? वाई। वाई, वेरी गुड। व्हेन रिप्रेजेंट्स योर टाइम। क्लैरिटी है? ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द WH फैमिली। तो बेटा नेक्स्ट रूल इज टू चेक द पंक्चुएशन। पंक्चुएशंस क्या होती हैं? व्हाट डू मीन बाय पंक्चुएशंस? बेटा कॉमा कहाँ लगेगा, फुल स्टॉप कहाँ लगेगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क कहाँ लगेगा, क्वेश्चन मार्क कहाँ लगेगा, दीज आर दी पंक्चुएशंस, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं हाउ आर यू, राइट, with a comma, this is a wrong sentence because it is a interrogative sentence. What do you mean by interrogative sentence बच्चे? Interrogative क्या होता है? Interrogative sentences are those sentences in which we ask questions. How are you, तुम कैसे हो, ठीक है। Where are you, तुम कहाँ हो, ठीक है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड WH फैमिली वेरी वेल। सो प्रोनाउंस आर वर्ड्स। अब प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउंस वो होते हैं जो नाउन्स को रिप्लेस करते हैं,
है ना. डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोनाउंस टेक डिफरेंट नाउन्स इन द सेंटेंस, सो वन मस्ट नो द करेक्ट प्रोनाउन व्हाइल रिप्लेसिंग ए नाउन. आपको पता होना चाहिए कि आपका अगर कोई नाउन है तो विच इज द राइट प्रोनाउन टू रिप्लेस योर नाउन. ये सारा 5th 6th में पढ़ा हमने. नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, एंड आई हैव गिवन यू ओवरव्यू ऑफ द सेम इन द लास्ट रिसेंट क्लास. ठीक है. अब मैं बोलता हूं, ओके लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. बताओ व्हाट इज द एरर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. कौन बताएगा बच्चे, व्हाट इज द एरर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. पढ़ो. राम इज अ बॉय, फुल स्टॉप, शी इज प्लेइंग क्रिकेट. बेटा जी बी क्विक, बी फास्ट. बेटा you need to replace the right pronoun. He is playing cricket. Clear है? Yes, sir. Okay. The next and the most important rule जहाँ पे आप गलतियां करते हो, that is identify the singularity and plurality. आपको देखना है कि जो मेरा सब्जेक्ट है या जो मेरा वर्ब है, is it reflecting a single pronoun or noun or a plural pronoun or noun. ठीक है. अब मैं यूज करता हूं बॉयज. ठीक है. बॉयज क्या है? नाउन. अब इनको रिप्लेस करने के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करूंगा बेटा? बॉयज को रिप्लेस करने के लिए मैं कौन सा प्रोनाउन यूज करूंगा बच्चे? इनको मैं रिप्लेस करूंगा दे के साथ, है ना. बॉयज हैं तो दे ही आएगा ना. अब दे के साथ अगर मैं हेल्पिंग वर्ब यूज करता हूं, क्या दे के साथ हैज आता है क्लास? ये बड़ी टेक्निकल चीजें हैं. तो दे के साथ क्या आता है? हैव आता है. हैव. क्योंकि ये प्लूरल आइडेंटिटी का प्रोनाउन है. आई गिव एन एग्जांपल. देखो, मैनी बॉयज आर डांसिंग टुगेदर. मैनी बॉय आर डांसिंग टुगेदर. बहुत लड़का एक साथ डांस कर रहे हैं. तो मैनी क्या है? मैनी रिप्रेजेंट करता है प्लूरलिटी को, बहुत सारे. और बॉय तो नहीं हो सकता ना. सो द एरर इज बॉय. अब बॉय को किससे रिप्लेस करेंगे? मैनी बॉयज आर डांसिंग टुगेदर. क्लियर हुआ बच्चे? यस सर. बेटा once you will be practicing hard, you will be solving these basic things, basic grammatical things within a minute. ठीक है. I recommend not to go with the definitions. देखो definitions में जितना हम घुसते हैं उतना हम कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग definitions लिखी जाती हैं. I have told you that I will be clearing your concept regarding it, and I have done it. तो बेटा कंसेप्चुअली चीजों को समझना शुरू करके इसको पेपर में इंप्लीमेंट करना शुरू करो. आर यू गेटिंग इट? ओके. सो द नेक्स्ट रूल इज एरर स्पॉटिंग फॉर चेकिंग द पंक्चुएशंस. तो एक यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है. इन द विलेज a large number of people live in one family. Due to this, numerous disputes occur between them. It results in hard tensions between the families. अब बेटा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्यों आएगा? यहाँ पे कौन सा इंटरोगेटिव सेंटेंस है? ठीक है. यहाँ पे numerous में इन्वर्टेड कॉमा क्यों आएंगे? इन्वर्टेड कॉमास कब आते हैं? डायलॉग्स में आते हैं, जब एक्टिव स्पीच पूछी जाती है. ठीक है. सो इसका क्या आंसर है? इन द विलेज कॉमा. यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं आएगा क्योंकि वी हैव नॉट स्टॉप्ड द सेंटेंस. वी आर रनिंग द सेंटेंस इन द सेम कंटिन्यूटी. ठीक है. इन द विलेज ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन वन फैमिली, फुल स्टॉप. ठीक है. नाउ आवर सेंटेंस इज कंप्लीटेड. ड्यू टू दिस वी हैव टू गिव अ पॉज. सो दैट इज व्हाई कॉमा इज बीइंग एडेड. न्यूमरस डिस्प्यूट्स यूजुअली अकर बिटवीन देम. It results in hard tensions between the families. It is not a question, it's a affirmative sentence. तो क्या आएगा? Full stop आएगा. क्लियर है बच्चे? क्लास? Yes, sir. Okay.
अब हम एरर स्पॉटिंग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सिंगुलैरिटी एंड प्लूरैलिटी, ठीक है? सुनते जाना और देखना, कीप योर आईज ऑन द स्क्रीन, राइट? There are two families of bear that live in the forest. One bear has 5 childs. ठीक है, childs क्या childs होता है, ठीक है? Another one has 2 children. एक जगह child और दूसरी जगह children. Children is the right word to be used for more than one children. All these children fight with each other due to this parent keep them apart. So there are 2 families of bears that live in the forest. One bear has 5 children, हमने पहले spot कर लिया था. Another one has 2 children. All the children fight with each other. Due to this, the parents keep them apart. We have identified. सर यहाँ पे these तो चेंज हुआ क्या चेंज होगा बच्चे? सर, these all these children जो है, इसमें ये चेंज क्यों हुआ these? बेटा these is a pronoun which is तो these used की जगह दा लिखा है। कहाँ पे? सर all these children fight, इसमें these की जगह दी क्यों लिखा है? ये change क्यों हुआ? all these children find with each other. Yes sir, सर ये All yes sir. we are talking specifically about these children जो बियर के बच्चे हैं, इसलिए these change हुआ दी में because we are emphasizing and we are specifying the children that belongs to bear. Got it? Yes sir. अब आया समझ? सो ये छोटी सी Yes, sir. चीज़ें हैं. यू नीड टू टेक दीज माइन्यूट बेसिक ग्रामर इनटू कंसीडरेशन वेरी इफेक्टिवली. ठीक है बच्चे?